Hello guys, this is Aqeel Ahmed. I'm the teacher of A-level computer science and my WhatsApp number is given on the top of my picture. So people from all around the world are most welcome to take my online classes, tuitions, and for private tuition you can contact me. And country code is given on the top with my cell phone number so you'll have no difficulty. I prefer that a student coming to me for private tuition, they should come in the month of August, regardless whether they want O-level tuition or A-levels tuition, or maximum in the month of September. Why? Because when you start learning in a sequence from the beginning and the whole year, you learn a lot. But I've observed that a student comes in the middle, they always have difficulty. Why? Because they join from the middle when 2 months are left, or 1 month is left, or 3 months are left, so they struggle till the end. So let's start the paper then. It's Cambridge O levels paper, paper 2210, that's the code, paper 1, variant 3, that's the variant number 3. October, November, meaning winter paper. 2020 is the year. And this paper is of 1 hour 45 minutes, and it is paper 1 theory. And in 2210, as you know that there are two paper 1 and paper 2. Paper 1 is all theory and paper 2 is based on practical. Normally in Pakistan, I've heard and I've seen also that teachers teach this paper 2, entire paper 2, by keeping themselves and the student confined to the board only. Whereas I personally feel that it cannot be done like that. The students should visit computer lab frequently so that they can gain hands-on experience and they can learn the techniques how to write programs. So that's the reason I'm not uploading any paper to videos. My target is to cover up paper 1 only. For paper 2, you need to take my private tuitions, and then I will teach you techniques, methods, procedures so that you will be able to grasp it completely, and time would come when you will be writing down program yourself and you can understand the paper too easily, and I mean it. So you're starting it. These are the instructions you must have seen before. Answer all questions. Can use black pen or dark blue pen. You may use an HB pencil for any diagram or the graph. Write your name, center number in boxes properly. Write your answer to each question in the space provided a stencil is given. Do not use an eraser, pencil, or correction fluid. Do not write on any barcodes. Calculator must not be used. Paper is of 75 marks and marks are given in the bracket, and you don't have to give the brand names. Exam won't give you any specific mark for writing down the brand name. You can just focus on your question and the answers. So the document is of 12 pages. There we go. That's the question number 1. And I already have solved this paper and I'll explain you, and wherever I have to do some rough work to show you how the things are done, we'll definitely do that. So don't worry about that, right? Just keep watching the video. 5 hardware devices are given. Tick to show if each device is an input, output, or a storage. You just have to identify which device is it. So SSD is a storage device, headphone is output. Why? Because you hear the sound from the speakers, the small speakers that are installed in it. 2D cutter is again an output device because you make different kinds of products using it and you get the final output. LCD projector gives you output on the wall. Microphone is an only input device here. So this was a simple question. Uh, Page has a computer that has central processing unit based on the von Neumann model for a computer system. Wait for a minute, hang on. So Page has a computer that has central processing CPU based on the von Neumann model for a computer system. Identify the component with the CPU that controls the flow of data. So remember, there are 3 units: control unit, ALU unit, and memory unit. So control unit fetches and decode instructions and control overall flow, manages overall tasks, and ALU perform all kind of arithmetic and logical calculations.
The third one is the memory unit that holds data in the program. So here you just have to write down the name, which particular component can control the flow of data. The second one is perform the calculations. So calculation is all done by arithmetic logical unit. So what type of calculation? In fact, arithmetic calculation meaning plus, minus, division, multiplication, or square of a number, or sometimes you find out the mod of the number also, like you get the remainder too. And similarly, you can perform relational operations also here using equal sign, or more than, or less than, or more than equals to, or less than equals to, or not equals to. So it's the same component that perform these type of operation. With that, logical operators can also be used like not, and or. So all these type of operations are performed inside ALU. Then the third one is identify the component within the CPU that stores the address of the next instruction to be processed. So it's the fetch execute cycle that initially address is stored in PC, and PC send the address to MAR, and on that address, whatever data or instruction is written, that is transferred to MDR, and that instruction or data is copied into CIR, and then it can be decoded and then can be executed. So that's the sequence. So PC holds the address. So that's right. PC holds the address, stores the address of the next instruction. PC tells you which instruction is to be executed next, and whatever address is stored there, that address is copied. For example, 100 is there, so 100 is copied into MAR after that. So that is why I've written program counter, MAR, or it can be called PC or MAR. Identify the register with the CPU that holds instruction. And from MAR address number 100, on that address, whatever instruction is written, for example, on that 100 instruction is increment, INC is written there. So that means an INC ACC accumulator. So that means increment instruction is there. So this instruction on this address of 100 is copied into MDR. So that's what examiner is asking here. Identify the component, identify the register with the CPU that holds an instruction that has been fetched from the memory. So from 100 address, instruction is fetched, is recorded into MDR, and then from there it will be copied into CIR also. So that is why it says memory data register or current instruction register. Identify the register within the CPU that holds the data that has been fetched from memory. So मेमोरी से कोई भी डेटा जो रीड होता है, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें 20 स्टोर्ड है और यहाँ पर इसका एड्रेस है 100 के एड्रेस से 20 अभी फैच हुआ है, तो फैच होके कहाँ आएगा, एमडीआर में आएगा. So all the data that has been fetched is loaded into MDR from the memory. So I hope you understood this part. Moving to the next question. It says 4 denary to 8-bit binary conversions are given there. So we'll have to see which one is correct or incorrect. And how will you do the rough work? I'll show you that here in Excel software. So I would advise that you can make boxes, and how many boxes? You can start with 8 boxes. And then if the number is 1,000,000, that is written by the examiner, and examiner wants you to check is this correct or incorrect. How would you do that? The number that is provided is written already in the paper. So I'm advising you, when you do the rough work, you can make several boxes. You can start with 8 boxes. Why? Because we have 8 combination of zeros and 1 in every set. So you can copy the first number there. On the top of the first box on the right hand side, write 1. Make it double as you go left.
तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, इसको डबल करते जाना है। डबल कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 आप करते जाएं, and then you have to see where you have 1, use the power of that number. So यहाँ 1 है तो इसका पावर यूज करेंगे 128, यहाँ भी 1 है तो इसका भी पावर यूज करेंगे 16, जहां भी 1 है तो उसकी पावर्स को यूज करेंगे, और फिर इनकी पावर्स को ऐड अगर करें तो 128 में प्लस करें 16 प्लस 1, तो ये बन जाता है 145, एंड दैट्स द राइट आंसर। एंड सिमिलरली 179 अगर हम प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे? लेट्स सी, 1 0 1 0 1 1 0 1। सो अब हमारे पास, हैंग ऑन, वेट अ मिनट, right guys, so I already have copied this number here, 101, as you can see, 0 1 1 0 1, and then wherever you see 1, we'll have to take out, it wasn't 1, it is 0, so we're not going to use this, so leave this blank. This one is 1, so we'll use this number, and we see 1 here, so we'll use this number also. So what are the numbers that we are using? We're using 128. We'll just calculate the total of all these: 128, 32, 16, 4, and 1. And I'm going to calculate this total here. यहाँ कर लेते हैं calculate इसका total. तो पता लग जाएगा ये नंबर किसके इक्विवेलेंट है। ये नंबर 181 के इक्विवेलेंट है, जबकि एग्जामिनर इसको कह रहे हैं 179, तो इसका मतलब है ये गलत है। That's wrong. इस तरह 11 की अगर बात की जाए, अब आपको समझ आ गया होगा, मैं ज्यादा कलरिंग वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फीड इन कर रहा हूँ। 0 0 0 1, उसके बाद 0 0 1 1। अगर हम यूज करें तो वी नीडेड नंबर व्हाट, 16, एंड देन 2 एंड देन 1, तो ये 19 के बराबर होता है, 11 के बराबर नहीं होता है, तो ये भी गलत है, इट्स रॉन्ग। सही है। तो जब भी यहाँ पे आप देखें कि इनकरेक्ट में इसको टिक मार्क किया हुआ है, सिमिलरली लास्ट वाला भी इनकरेक्ट है, और लास्ट वाला कैसे इनकरेक्ट है उसको भी देख लेते हैं। 0 1 1 0 and then 0 0 1 0, and then we can copy their powers, so it's like 64 32 and then 2, so that makes it equivalent to 98. So that's not equivalent to 100 at all, right? So this way we found the solution of the question. तो आप भी ऐसे ही रफ वर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नंबर है जो कि गिवन है बाइनरी में, और इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। 4 4 के सेट बने हुए हैं, तो इसके ऊपर पावर आपने लगानी होगी 1 2 4 8 लाइक दैट। पहला सेट की फिर आपने देखना है कहाँ 1 है, एक भी 1 नहीं है, इसका मतलब ये सेट बराबर हो गया 0 के। फिर यहाँ पे पावर लगाना है 1 2 4 8, तो 0 को छोड़ दें, जहाँ 1 है उसके ऊपर पावर है 4 की, तो ये सेट बराबर हो गया है सेकंड वाला 4 के। इस तरह लास्ट वाले के ऊपर पावर लगाए 1 2 4 8, तो 1 2 पे तो 0 छोड़ दें, 8 4 12, ये आपको ऐड करना पड़ेगा 12, और 12 हेक्सा में सी के बराबर होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको अपनी पास्ट वीडियोस में सिखा के गया हूँ। हेक्सा में 10 की जगह पर ए लिखते हैं, 11 की जगह पर बी लिखते हैं, तो 12 की जगह पर सी लिखते हैं, 13 की जगह पर डी लिखते हैं, 14 की जगह पर ई लिखते हैं, 15 की जगह पर एफ लिखते हैं, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद है next question, question number 4. Just wait for a minute. Let me remove these mark. I hope you understand. So Eugene has a web server that stores his online shopping website. Customers access the website using a browser. Describe how the web pages are requested and displayed on the computer, on the customer's computer. So ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको पूरा सीक्वेंस समझाना है यहाँ पर कि कैसे वेब पेज जो है वो रिक्वेस्ट किया जाएगा और फिर डिस्प्ले होगा कस्टमर के कंप्यूटर पे। सो आपका जो भी ब्राउज़र होता है
उस ब्राउज़र में आप वेब एड्रेस एंटर करते हैं, जहाँ पर जैसे यूआरएल एड्रेस की जो लाइन होती है, यूआरएल बार होता है, और उधर आप एड्रेस एंटर करते हैं www.facebook.com। तो इसी तरह से आप ये वाला पॉइंट है कि ब्राउज़र सेंड्स द यूआरएल टू डीएनएस। डीएनएस क्या है? डीएनएस डायरेक्टरी सर्वर्स हैं, ऐसे सर्वर्स हैं जिन पे तमाम वेबसाइट की डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ से जो भी एड्रेस आपने लिखा होता है वो कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसफ़र होता है, भेजा जाता है डीएनएस को यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल। डीएनएस क्या करता है? डीएनएस सर्वर वर्ल्ड में एक नहीं होते, ये डीएनएस सर्वर 1 है, उस पर ट्राई करेगा, जो भी आपके कंट्री से क्लोजर होगा, अगर उस पर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो दूसरे कंप्यूटर पर ट्राई करेगा। तो इसको कहते हैं हायरार्किकल सिस्टम ऑफ द डीएनएस। तो देयर आर मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स, तो उन पे वो ढूंढता है, डीएनएस फाइंड्स मैचिंग आईपी एड्रेस। तो इस पे वो जो वेबसाइट होता है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर ढूंढेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ ढूंढेगा। तो इस तरह ये मैचिंग ढूंढता है। एंड सेंड द आईपी एड्रेस टू द वेब ब्राउजर। मान लेते हैं कि ये आईपी एड्रेस मिल गया है, यहाँ पर आईपी फाउंड हो गया, ये आईपी एड्रेस है, तो ये आईपी एड्रेस उस ब्राउजर को वापस भेजेगा। वेब पेजेस आर सेंड फ्रॉम वेब सर्वर्स टू द ब्राउजर, और यहाँ से ये वेब पेजेस जो है निकाल करके जो है वो जब आईपी मिल जाता है तो उस आईपी से वेब पेज जो है वो लोड कर दिया जाएगा ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर रेंडर दी एचटीएमएल टू डिस्प्ले वेब पेजेस, और ब्राउजर के अंदर जो एचटीएमएल कोड है वो उसको रेंडर किया जाएगा ताकि उसको डिस्प्ले किया जा सके, सही है, और कन्वर्ट किया जा सके और डिस्प्ले किया जा सके। क्योंकि आपको नहीं मालूम वो जो वेब पेज बना है वो एचटीएमएल लैंग्वेज से बना है या जावा स्क्रिप्टिंग से बना है या उसमें कोई और किस्म की स्क्रिप्टिंग यूज हुई है, तो उसको ये रेंडर करेगा। और अगर वेबसाइट के कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो भेजे गए, उनको ऑथेंटिकेट करेगा, उन सर्टिफिकेट को भी चेक करेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाट्सएप का सर्टिफिकेट है, इधर चले जाएं तो यहाँ पर व्हाट्सएप का सर्टिफिकेट आ रहा होगा, साइट सेटिंग्स, माइक्रोफोन कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, तो ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। तो हर साइट का ऐसे जो है एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको नजर आना चाहिए, एंड इसके थ्रू डेटा इनक्रिप्ट होता है और भेजा जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। स्टेट 3 ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स टू यूजन वेब सर्वर्स। हैकिंग हो सकती है, ये सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर हैक हो गए तो डेटा चला जाएगा, डिलीट हो सकता है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो सकते हैं, जब आपके सर्वर को दूसरे लोग फ्लड कर देते हैं अनवांटेड मैसेजेस से। तो यूँ समझे कि एक बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आपके कंप्यूटर को भेजे जाते हैं, फायरवॉल को भेजे जाते हैं। तो अगर ये फायरवॉल कंप्यूटर है और इसका काम सिक्योरिटी मेंटेन करना था, तो इस फायरवॉल को अब जो है वो फ्लड कर दिया जाता है अनवांटेड मैसेजेस से, तो फिर फायरवॉल इसको डिलीट करने में लग जाता है और हैकर जो है वो आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। या मेलवेयर आ जाते हैं, वो ऐसे किस्म के वायरसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में खुद की कॉपी बनाते हैं, दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, और या वायरसेस आ सकते हैं, सही है। सो हैंग ऑन फॉर अ मिनट। तो या मेलवेयर की एग्जामिनर बात कर रहे हैं, तो मेलवेयर डैमेजिंग होते हैं, डिवास्टेटिंग होते हैं, या आपके कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम्स को रिमूव कर सकते हैं। वॉर्म्स जो होते हैं वो भी एक किस्म के वायरसेस होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, वो खुद की कॉपी बनाते हैं, तो उसको आप वॉर्म्स कहते हैं। बहरहाल उसकी डिटेल में एग्जामिनर गया नहीं है। तो या वायरस की बात कर रहे हैं, तो वायरस इज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट कैन क्रिएट डिसरप्शंस इन योर कंप्यूटर। तो ये आपके कंप्यूटर के डेटा और सॉफ्टवेयर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अर्जुन uses scanner to create digital version of some printed document. The scanner is attached to his computer using a USB stick to show if the USB connection uses parallel or serial. Parallel वो होता है जो कई वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हो, और वायर्स भी कितने, 8 वायर्स के कॉम्बिनेशन से ये कनेक्टेड होता है, और इससे मुख्तलिफ डेटा एक ही साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसे 0s and 1 के कॉम्बिनेशन एक ही साथ भेजे जा सकते हैं। तो ये जो है ये कहलाती है पैरेलल ट्रांसमिशन। यूजिंग सेवरल वायर्स मल्टीपल बिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड। और दूसरे एंड पे जब ये पहुंच रहे होते हैं तो मॉडल हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, और ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए होते हैं, फॉर अबाउट 5 मीटर्स के लिए, जो कि कंप्यूटर से प्रिंटर वगैरह को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए होता है। जबकि सीरियल जो होता है
ये ऐसी डेटा ट्रांसमिशन मेथड है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं यूजिंग अ सिंगल वायर, यूजिंग सिंगल वायर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने बताना है पैरेलल और सीरियल के डिफरेंसेस बताने हैं। डिस्क्राइब योर चूजन मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, इसमें से आप कोई भी दो में से कोई एक बता सकें, तो यहाँ दोनों को ही बताया हुआ है। सीरियल बिट सेंड वन एट अ टाइम, सीरियल में एक ही वायर होता है तो एक वक्त में एक नंबर जाता है, फिर इस जब ये चला जाता है दूसरे एंड पे फिर दूसरा जाएगा इसके बाद, तो ये बिट बाय बिट डेटा भेजता है थ्रू सिंगल वायर, तो ये सीरियल है। जबकि ऊपर वाला जो मैंने बताया वो मल्टीपल है, उसमें ये सारी बिट्स एक ही साथ ट्रांसफर हो सकती हैं दूसरे कंप्यूटर को, मगर मर्डल वगैरह हो सकती है, मल्टीपल वायर्स भी होते हैं। गिव 3 बेनिफिट्स ऑफ यूएसबी कनेक्शन। सो यूनिवर्सल कनेक्शन होता है, यूएसबी जो है वो यूनिवर्सल है, उसके थ्रू आप स्कैनर कनेक्ट करें, प्रिंटर कनेक्ट करें, मुख्तलिफ डिवाइसेस स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। यूएसबी को आप वायर को आप एक ही तरीके से इंसर्ट करते हैं, बैकवर्ड कंपैटिबल भी होता है वो। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये है कि अपने कंप्यूटर में आप पुराने वाले यूएसबी लगाए 2.0 वाले या 3.0 वाले, तो बिल्कुल वो सब चलते हैं, ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेता है। कैन पावर डिवाइसेस, और ये डिवाइसेस को पावर प्रोवाइड करने के लिए भी होता है, फास्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, और इनएक्सपेंसिव है, अगर खरीदने जाते हैं तो सस्ते मिलते हैं। उसके बाद Arjun uses internet to send digital document to his friend. He wants to make sure that documents are sent securely. Identify two protocols. तो डेटा को सिक्योर तरीके से भेजने के लिए HTTPS होता है। अगर ये होगा तो डिवाइस जितनी भी वेबसाइट होती हैं जो HTTPS सिक्योर्ड होती हैं, तो उसमें इस तरह का पैडलॉक बना हुआ आ रहा होता है, यानी ताला बना हुआ आ रहा होता है। SSL जो होता है ये इंक्रिप्शन करता है, और SSL के बाद एडवांस वर्जन आ गया था TLS, और ये इंक्रिप्शन भी करता है, ऑथेंटिकेशन भी करता है, और इंटेग्रिटी भी चेक करता है। तो ये सबसे बेहतर है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये तीनों सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे। मोस्ट अपडेटेड अब ये वाला है, दिस वन इज मोस्ट अपडेटेड TLS। As the writes a paragraph in an examination about encryption, there are several terms missing from the paragraph. Complete the paragraph using the list of given terms. Not all terms may need to be used. Some key terms may be used more than once. एक से ज़्यादा मर्तबा भी इस्तेमाल हो सकती हैं। The data is encrypted using key algorithm. जब भी आप encrypt करते हैं डेटा को तो कोई algorithm लगाते हैं, कोई set of steps होते हैं जिसको आप algorithm कहते हैं। This is an algorithm or a key that is used to scramble data, और इसी के थ्रू डेटा स्क्रैम्बल होता है। और डेटा बिफोर इंक्रिप्शन इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट। जब डेटा इंक्रिप्ट नहीं हुआ होता है तो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, और डेटा इंक्रिप्ट हो जाने के बाद डेटा हैज बीन इंक्रिप्टेड इज नोन एज साइफर टेक्स्ट। एंड टू रीड द इंक्रिप्टेड डेटा इट नीड्स टू बी डिक्रिप्टेड। सो इंक्रिप्शन के बाद डिक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए भी आपको चाहिए वही की एल्गोरिथम चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल लेके भी बताऊं तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आपने लिखा है आपका पासवर्ड है सपोज पाकिस्तान, अभी ये इनक्रिप्ट नहीं हुआ है, तो ये नॉन इनक्रिप्टेड डेटा, इसको कहेंगे प्लेन टेक्स्ट। इस पे आप अप्लाई करें कोई एल्गोरिथम। मेरा एक अपना एल्गोरिथम है आपके सामने अगर शेयर करूं, खुद का सेल्फ कस्टमाइज एल्गोरिथम, तो ये इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम फॉर इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जब मैं यूज करने जा रहा हूँ तो मेरे एल्गोरिथम में सबसे पहले हमें ASCII कोड निकालना है इन सारे लेटर्स का, जो हमने निकाला फिर हम इसमें एल्गोरिथम का नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें +5 कर लें या 7 कर लें, कुछ भी, +5 में करने जा रहा हूँ तो 85 हो जाएगा ये। फिर तो इसका मतलब है ओरिजिनली P का कोड 80 था, मैंने इसको 85 बना दिया, और अब मैं इसको कन्वर्ट बैक कर लूंगा लेटर पे। तो यहाँ पे हमने किया था +5, और फिर यहाँ पर इससे ऊपर हमने किया था ऑब्टेन ASCII कोड, +5 किया,
और अब मैं कह रहा हूं कि कन्वर्ट बैक ASCII टू लेटर। इसको अब आप लेटर पे कन्वर्ट कर दें तो CHR का फंक्शन होता है एक्सेल में, लगा लेते हैं। तो आप देखें पाकिस्तान को बड़े आसानी से मैंने कुछ और बना दिया, UFPNWNXYFS। अब अगर ये डेटा किसी के कंप्यूटर पे जाएगा तो अगर उसको मिलेगा तो वो इसको नहीं समझ सकता है जब तक वो इसको डिक्रिप्ट ना कर ले। और डिक्रिप्ट करने के लिए उसको फिर इसका वाइस वर्सा मेथड यूज करना पड़ेगा कि वो फिर इसको इसकी कोड पे लेकर आए और फिर इसमें से -5 कर ले और फिर इसको कन्वर्ट बैक कर लें। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों कंप्यूटर पे जो भेजने वाला है वो इसको इनक्रिप्ट कर रहा है, ये भेजने वाला कंप्यूटर है, ये सेंडर कंप्यूटर ये काम कर रहा है, सेंडर विल डू इट। और दूसरे एंड पे जब ये डेटा मिलेगा रिसीवर को तो रिसीवर को ये डेटा रिसीव हुआ है और फिर उसको रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर ये करना पड़ेगा -5, यानी डिक्रिप्शन होगी तो रिसीवर विल डू इट। तो एक मैंने आसान सी एग्जांपल आपको बताई है कन्वर्ट करने की, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो गई, तो यहाँ पे ये डिक्रिप्शन हो जाने के बाद इस तरह से आगे। Let's move to the next question. Then we have question number 7, और question number 7 में हमने बताना है कि इसमें से ये कहता है 7 बिट का बाइनरी वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। 7 बिट की वैल्यूज एक कंप्यूटर से दूसरे पे जा रही हैं। A parity bit was added to each binary value creating 8 बिट बाइनरी पैटर्न। तो यहाँ देखें एक 8 बिट का पैटर्न बना दिया, इसमें 8वीं बिट 8 नंबर की जो बिट है ये पैरिटी बिट है, ये इसमें ऐड कर दी गई है। All the binary values have been transmitted correctly, और binary values को ट्रांसफर कर दिया गया correctly। Tick to show whether an even or odd parity check has been used। और आपको पता लगाना है कि कौन सा parity method यूज किया गया। तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ 1 चेक कर लें। नंबर ऑफ 1 यहाँ 2 है, 2 एक इवन नंबर है तो इवन पे टिक लगा दें। नंबर ऑफ 1 यहाँ भी 2 है तो इवन पे टिक लगा दें। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 3 है और 3 एक ऑड नंबर है तो ऑड पे टिक लगाएं। और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करें कितने हैं, 2 हैं, तो 2 एक इवन नंबर है तो इसको 2 पे यानी इवन नंबर्स पे टिक लगा दें। वो कहता है कि पैरिटी में नॉट ऑलवेज डिटेक्ट एरर्स दैट हैव अकर्ड इन डेटा ट्रांसमिशन। होता यह है कि एक भेजने वाले का कंप्यूटर है और एक रिसीवर का कंप्यूटर है। जैसे मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को डेटा जाए तो ये मेरा कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर, और ये आपका कंप्यूटर, दैट्स योर कंप्यूटर। तो मेरे कंप्यूटर पे मैंने तो इवन ऑड मार्क करके भेज दिए, कैलकुलेट कर लिया, जब आपके कंप्यूटर पे पहुंचेगा हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, ऑल्टर हो जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। तो पहले से जो मेरे पास से डेटा आ रहा है वो इवन बन के आ रहा था और आपके पास जब पहुंचा नंबर ऑफ 1 काउंट करें तो 3 हो चुके हैं, इसको ऑड होना चाहिए था, जो कि नहीं होगा, तो मिस्टेक का चांस है। मतलब आपको टेबल मिलेगा इवन के साथ जबकि अंदर नंबर पड़े होंगे ऑड। और ये काम कैसे हो जाता है, ये हैकिंग की वजह से हो जाता है, वायरसेस की वजह से होता है, डिस्टॉर्शन की वजह से होता है, इंटरनेट सर्वर्स डाउन होने की या प्रॉब्लम्स होने की वजह से होता है। तो ये वो कह रहा है कि पैरिटी में नॉट ऑलवेज डिटेक्ट एरर्स। वरना तो बड़ा आसान होता है कि हम पैरिटी यहाँ भी कैलकुलेट करें, दूसरे एंड पे भी कैलकुलेट करें। तो मेरे पास भी 2 है, आपके पास भी अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो कैसे, नंबर ऑफ 1 2 है, हाँ जी इवन है, हाँ ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन होती है एक तरह। तो बट ये हमेशा डिटेक्ट नहीं करेगी एरर्स दैट हैव अकर्ड इन डेटा ट्रांसमिशन स्टेट। व्हाई पैरिटी चेक मे नॉट डिटेक्ट डेटा ट्रांसमिशन एरर्स, कि क्यों ये हमेशा डेटा एरर डिटेक्ट नहीं करते हैं, कि वजह क्या है। ट्रांसपोजिशन एरर होते हैं। ट्रांसपोजिशन एरर ये होते हैं कि डेटा जो है वो ट्रांसपोज हो गया है, कि आई तो 2 1s है मगर ये 2 1 ये 1 यहाँ लग गया है और यहाँ 0 हो गया है। तो जब ये वाला कंप्यूटर इसको काउंट करेगा वो तो नंबर ऑफ 1 काउंट करेगा, 2 ही मिलेंगे और ये 2 को इवन ही समझेगा जबकि उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। इसको ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं। सही है। इवन नंबर ऑफ इनकरेक्ट बिट्स, यानी इनकरेक्ट बिट पे शिफ्ट हो गया वो।
इसके अलावा और भी एरर्स होते हैं जो अभी पूछे तो नहीं है, लेकिन बताता चलूं कि जैसे नंबर ऑफ वन बढ़ जाए तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी अगर वो उनकी पोजीशन तो वो भी प्रॉब्लम है, और अगर वो एडिशनल आ जाए तो भी प्रॉब्लम, रॉन्गली आ जाए तो भी प्रॉब्लम। If one other error checking method that could be used to check for the error in data transmission, और कौन सा मेथड है जो यूज होते हैं, तो ARQ है जो कि सेल फोन के लिए होता है। सेल फोन का जब मैसेज आपको पूरा नहीं पहुंचता है, जब टेक्स्ट मैसेज आपको पूरा नहीं पहुंचता है, तो आप उसको चेक कर लेते हैं। आप क्या चेक करते हैं, ये ARQ जो है ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एक प्रोटोकॉल होता है। ये डिटेक्ट कर लेता है कि मैसेज इनकम्प्लीट है, तो ये इसको दोबारा अटेम्प्ट करता है भेजने, तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट करेगा until you get that, और अदरवाइज ये फिर एक लिमिटेड टाइम के लिए काम कर रहा होता है। चेकसम, चेकसम क्या चीज़ है, जो भी डेटा भेजा जा रहा है उसको टोटल करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये डेटा बिट्स भेज रहा हूँ, तो 1 2 4 8 16 32 एंड 8, इसका टोटल बना मेरे पास इक्वल्स टू 40। तो जब डेटा जाएगा तो ये अपने साथ डेटा भी जाएगा और साथ में ये टोटल भी लेके जाएगा, मतलब ये 40 जो है ये इसके साथ प्लग्ड इन होके जाएगा साथ, तो ये साथ जाएगा ताकि दूसरे एंड पे फिर ये क्रॉस चेक हो सके। चेकसम, चेकसम के और भी मेथड हो सकते हैं कैलकुलेट करने के, बट दिस वाज वन ऑफ देम। जस्ट सेकंड। So either it is buying a new computer monitor that displays an image using LCD technology. Explain what is meant by LCD technology. So ये liquid crystal display होता है, इसमें liquid होता है और दो स्क्रीन्स के कॉम्बिनेशंस में होते हैं। अगर आपने देखा होगा LCD में ऊपर अगर आप टच करें तो आपको लिक्विड सा फील होता है अंदर। तो द डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ पिक्सल, पिक्सल की मदद से बनाया जाता है डिस्प्ले। अरेंज इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में बनता है, यानी पिक्सल जो होते हैं वो मैट्रिक्स में रखे जाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब है रोज एंड कॉलम। यूजेस अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। बैकलाइट डिस्प्ले के लाइट इसके बैक पे पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। विद CCFL एंड LEDs, और इसमें दो टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। CCFL फ्लोरेसेंट लैंप होता है, या फिर LEDs होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स होती हैं। या तो ये लैंप वाला सिस्टम होगा या LEDs वाला सिस्टम होगा। सो लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल यूज कर रहा होता है। क्रिस्टल कैन बी टर्न बिटवीन ओपैक एंड ट्रांसपेरेंट। तो जहाँ क्रिस्टल होते हैं और ओपैक टेक्निक ये होती है कि उसमें लग के जाएगी लाइट, तो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी। सो ट्रांसपेरेंट टू अलाउ लाइट टू पास, या ऐसा हो कि जो लाइट जो है इसको क्रॉस कर जाए। सो क्रिस्टल कैन बी टर्न बिटवीन ओपैक एंड ट्रांसपेरेंट, या तो ट्रांसपेरेंट होगी तो लाइट पास कर जाएगी, अदरवाइज टर्न बैक करके रिफ्लेक्ट करके आती है। कलर्स क्रिएटेड यूजिंग RGB, और ये RGB कलर्स क्रिएट करते हैं। स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ LCD टेक्नोलॉजी। लो पावर कंजम्पशन है, कूल इन्वायरमेंट में चलती है, और डू नॉट सफर इमेज बर्न, इमेजेस बर्न नहीं होते हैं। सफर डू नॉट सफर फ्लिकर इश्यूज, फ्लिकर भी नहीं करते स्क्रीन। और ब्राइट इमेज कलर्स, के कलर बहुत अच्छे होते हैं, ब्राइट होते हैं। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, और बेटर पिक्चर दे रहा होता है आपको। चीपर टू परचेज है, सस्ता भी है। Swell uses both CDs and DVDs to store her school project. Give 3 similarities between a CD and a DVD. तो CD हो या DVD हो, they need a red laser to read and write data. Both are spun to read. Both uses spiral track. तो वो स्पिन भी कर रहे होते हैं और इस पे ट्रैक्स होते हैं इस तरह से, और जब आप इसको ट्रे में डालते हैं तो ये घूमता है, स्पिन करता है। दोनों ही ऑप्टिकल की रेंज में आते हैं, दोनों ही ऑफलाइन स्टोरेज में आते हैं, यानी अगर आपके बैग में भी रखा होता है इस पे डेटा मौजूद होता है, और दोनों नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में होते हैं। और पिट्स एंड लैंड्स होते हैं, यानी इस तरह होता है कि फ्लैट इसकी अर्थ होती है और इस पे इस तरह से होल्स होते हैं, पिट्स एंड लैंड्स, इस पे डेटा जाके रिकॉर्ड हो रहा होता है। बहुत ही डीप पिक्चर अगर आप देखेंगे नेट पे गूगल करेंगे पिट्स एंड लैंड, तो आपको पता लगेगा कि एक तो लैंड है और फिर उसमें होल्स हुए वो होते हैं। इस तरह का इम्पैक्ट आ रहा होता है। स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन द CD एंड DVD।
तो डीवीडी डुअल लेयर होता है, सीडी सिंगल लेयर होता है। डीवीडी में ज्यादा कैपेसिटी होती है, कितनी कैपेसिटी होती है? 4.7 जीबी होती है। सीडी में कितनी होती है? 500 एमबी तक होती है, 500 से 600 वेरी करती है। डीवीडी है शॉर्ट वेवलेंथ लेजर, इसकी लेजर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। डीवीडी स्पन फास्टर, तेज स्पन करती है। हैव हायर डेटा ट्रांसफर रेट, और इसके हायर डेटा ट्रांसफर रेट मतलब ये तेजी से डेटा रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखती है। इसमें पहला गेट एंड गेट है जो कि ये है, और इसमें एक वायर आ रही है बी से, तो हमें यहाँ से इसको कनेक्ट करना चाहिए। ये बी से वायर आ रहा है, और नॉट ए, तो ए से इधर जा रहा है, नॉट होते हुए ये कन्वर्ट होते हुए आगे आ रहा है, और नॉट का गेट ये लग गया, और इसके साथ ज्वाइन हो रहा है और का गेट। तो और का गेट यहाँ पर आ गया, और इसमें और के अंदर एक ए और सी, तो ए से एक लाइन आ रही है, इसको ऐसे ओवरलैप करने के लिए घुमा लें थोड़ा सा। ए से लाइन आ रही है और यहाँ से सी से लाइन आ रही है, और फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला एंड, इन दो को कनेक्ट करना है इस जोर के साथ। तो ये जोर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर, और फाइनल आउटपुट आपके पास एक्स आ जाएगा, जो कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा इसको। और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आना चाहिए। चलें देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया गया है। ए बी सी तीन कॉलम है, जीरो से स्टार्ट किया हुआ एग्जामिनर ने, तो हम भी जीरो से ही कर लेते हैं। 0 1 0 1 0 1 और 0 1, 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि जितने इनपुट होते हैं ये इनपुट वेरिएबल है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें, 1 2 3, ये इनपुट वेरिएबल है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। डबल जीरो डबल वन, और इस तरह से पहले कॉलम में 0 1 0 1 करते हैं, फिर डबल जीरो डबल वन, फिर 4 टाइम 0 then 4 टाइम 1। उसके बाद हमारे पास ए नॉट भी है। ए नॉट मेरे पास, क्योंकि मैं कंप्यूटर एक्सेल यूज कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ए की वैल्यूज को ऑपोजिट करना है, तो वहाँ 4 जीरोस 4 1 थे, यहाँ 4 1 4 जीरोस हो जाएंगे। और उसके बाद मुझे करना है एंड का गेट की कैलकुलेशन करनी है। एंड के गेट में हमने करना था ए नॉट मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए नॉट मेरे पास आ चुका है, मल्टीप्लाई बाई बी करना है। उसके बाद मुझे करना है और के गेट की कैलकुलेशन, उसमें मुझे करना है ए इंटू सी, ए प्लस सी, सॉरी, ए में प्लस करना है सी। एक भी वन होता है तो आंसर वन होता है, दो वन आ गए यहाँ पर, ए और सी में वन वन है, तो इसका मतलब यहाँ टू दिखा रहा है, टू को आप वन से चेंज कर, दो वन हो जब भी वन ही आता है। और उसके बाद आपको जोर निकालना है, यानी एक्स और एंड और को जोर करना है। जोर में दो डिफरेंट नंबर पे वन आता है, सेम नंबर पे जीरो आ जाता है। ये आपका आंसर बना 0 1 1 0 एंड ऑल वन लाइक दैट, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ये सेंसर वाले क्वेश्चन है, जो कि मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर आता है, इस तरह के सवाल। तो सेंसर जो होते हैं वो एनालॉग डेटा रीड करते हैं, और सेंसर का जो एनालॉग डेटा होता है, मैं इसको ए लिख रहा हूँ तो आप समझ जाएं ए डेटा है, यानी एनालॉग डेटा है। सेंसर से ये डेटा पास ऑन किया जाएगा एडीसी कन्वर्टर को, ये इसको डिजिटल बनाएगा, डी डेटा कर देगा, डिजिटल डेटा। और उसके बाद यह मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एनालॉग, यहाँ पे डेटा एनालॉग होता है, फिर एडीसी पे आता है तो डिजिटल हो जाता है।
डिजिटल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अब ये प्रोसेसर पे आएगा और प्रोसेसर को तो डिजिटल डेटा ही समझ आता है। डिजिटल डेटा को प्रोसेसर चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि ये इन द रेंज है या आउट ऑफ द रेंज है। अगर इन द रेंज हुआ तो इसका मतलब है नो एक्शन नीडेड, आउट ऑफ द रेंज हुआ तो एक्शन इज नीडेड और फिर ये एक्शन परफॉर्म करने से पहले वापस डीएससी को देगा और फिर एक्चुएटर को देगा। एक्चुएटर जो होता है वो किसी भी चीज को ऑन ऑफ करता है या ओपन और क्लोज करता है। बहुत सी जगह पर जहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होते, सिर्फ मॉनिटरिंग होते हैं, तो वहां पर आउटपुट आ जाता है, यहीं पर ही बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कंट्रोलिंग सिस्टम है तो आउटपुट से आगे एक्चुएटर पे जाएगा या स्विच पे जाता है। स्विच से भी ऑन ऑफ करते हैं, अदरवाइज जॉइंट एप्लीकेशन होती है तो एक्चुएटर से करते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। जैसे कराची का अगर अभी की पूछा जाए कि आज कितनी गर्मी है, कितनी हीट है, तो आज है 44 डिग्री। और एक रेंज आपको मालूम है, अगर आपसे पूछूं, सिस्टम में एक प्री स्टोर्ड रेंज होती है ऑलरेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री स्टोर्ड रेंज नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं? 44 नॉर्मल वैल्यूज ये हैं कि कराची में सर्दी जब पड़ी है तो कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी जब पड़ी है तो ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री तक, 3 to 50 डिग्री। आज का जो टेम्परेचर है 44 है, तो ये इन द रेंज है, तो इसका मतलब है नो नीड टू वरी। लेकिन जब भी कभी ये टेम्परेचर एक पॉइंट भी अगर ये ऊपर गया तो ये जो प्रोसेसर जो कंपेयर करता है ना, ये प्रोसेसर किस चीज को कंपेयर करेगा? प्रोसेसर इस रीडिंग को, करंट रीडिंग को इसके अंदर चेक करेगा कि ये इसके अंदर है या इसके बाहर है। तो इस वक्त पता लगा ये इसके बाहर है या आउट ऑफ द रेंज है, तो इसका मतलब है गर्मी ज्यादा है, तो चिलर सिस्टम अगर है तो वो ऑन कर देगा ताकि कमरा जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाए। और सर्दियों में ये वाइस वर्सा काम करता है, हीटर ऑन कर देते हैं। सही है, तो इस तरह का ये सिस्टम होता है जो काम करता है। और इसमें फिर डेटा लॉगर्स भी बनाए जाते हैं। डेटा लॉगर्स जो होते हैं वो स्टोरेज कर रहे होते हैं, एक टेबल बना रहे होते हैं कि कौन सी डेट थी, कौन सी टाइम था और क्या इंसिडेंट हुआ, मतलब चिलर ऑन किया गया या ऑफ किया गया। तो डेटा लॉगर क्या होते हैं? डेटा लॉगर कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस, कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस जिसपे आप डेटा स्टोर करते हैं, तो ये इस तरह डेट टाइम इंसिडेंट ये पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें। और ये कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, टाइम डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ हम देखें तो ये कहते हैं सुटेबल सेंसर यूज फॉर मोशन और प्रेशर सेंसर किसके लिए है? या थीम पार्क इज अ गेम, ये गेम है थीम पार्क का, वेयर अ प्लेयर ट्राइज टू रन, जिसमें प्लेयर भागने की कोशिश करेगा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट से फिनिश तक। तो वो गेम है कुछ इस तरह के, प्लेयर भाग रहा है स्टार्ट से लेके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिश पॉइंट है, भागेगा विदाउट गेटिंग वेट, और इसको जो है वो गीले होने से बचाना है। The system for the game uses sensor. System जो है वो सेंसर यूज करेगा and microprocessor to spray water. सिस्टम जो है वो स्प्रे करेगा वाटर, और जो भाग रहा है उसको बचना है इस स्प्रे से। ये बंदा भाग रहा है, इसको बचना है इस स्प्रे से। Describe how the sensor and microprocessor are used in the system. So suitable sensor, motion sensor और प्रेशर सेंसर। तो इसके भागने से मोशन सेंसर को यूज कर सकते हैं ताकि इसका भागना या मोशन को डिटेक्ट किया जा सके, या प्रेशर को। एडीसी यूज किया जाएगा क्योंकि सेंसर से जो डेटा आएगा वो एनालॉग होता है, और एडीसी इसको क्या करेगा? डिजिटल बनाएगा ताकि ये प्रोसेसर के पास आए तो समझ सके। फिर प्रोसेसर क्या करेगा? प्रीस्टोर्ड वैल्यूज और न्यू वैल्यूज को कंपेयर करेगा। हर सिस्टम में ऐसे ही काम करता है कि विद इन द रेंज है या आउट ऑफ द रेंज है, और फिर ये वाटर को स्प्रे करेगा। अगर आउट ऑफ द रेंज हुआ तो वाटर को स्प्रे करना शुरू करेगा। इफ द वैल्यू विद इन द रेंज, नो एक्शन इज टेकन, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं लेगा और कंटिन्यूसली ऐसे ही काम करता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी बात, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। Now Warner says that he has a very good internet service provider that provides several services. 5 statements about ISPs are given and you will have to select which one is true and which one is false. So provide access to the internet for customers. So एक ISP क्या internet provide करता है? Yes, true. Can determine the maximum bandwidth available for customer. ISP पता लगा सकता है कि आपको क्या bandwidth दी जा रही है
amount of data that can be transferred in 1 second time. तो वो बिल्कुल ISP को पता होता है. Monitors the volume of data downloaded by customer. ISP को ये भी पता होता है कि आपने कितना डेटा डाउनलोड कर लिया है. Can provide an IP address for the customer, और ISP जो है वो आपको IP address भी देते हैं. Store the contents of all the web pages available on the internet. ऐसा बिल्कुल नहीं करते वो. इंटरनेट पे तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, बिलियन ऑफ पेजेस होंगे, वो सबको स्टोर नहीं करते. जो यूजर रिक्वेस्ट करता है वो हमारा ISP हमें डाउनलोड करके देता है, मदद देता है. फिर जो क्वेश्चन है इसका ताल्लुक है फिशिंग से, और फिशिंग का ताल्लुक होता है ईमेल से. एक ईमेल आपके कंप्यूटर में आएगी, उसमें कुछ भी लिखा होता है, और जो बड़ी लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी बैंक वाले की तरफ से आई है, और वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपके सिस्टम को वो कंट्रोल कर लेते हैं और आपके डेटा को रिवील कर देते हैं. फार्मिंग जो है वो एक वेबसाइट है, और एक वेबसाइट जो है उससे वो आपको दूसरे वेबसाइट पे, बोगस वेबसाइट पे ले जाता है. तो ये वेबसाइट टू वेबसाइट आपको घुमाता है. जिस वेबसाइट पे आपने जाने की रिक्वेस्ट की थी उस वेबसाइट पे नहीं जाएगा, बल्कि किसी और वेबसाइट पे ले जाएगा, बोगस वेबसाइट पे ले जाएगा. अगर आपके स्कूल की वेबसाइट पे आप जाना चाहते थे, आपने एड्रेस लिखा, और ये आपको ले जाएगा किसी xyz.com पे, और जो कि एक बोगस वेबसाइट होगी, थर्ड क्लास वेबसाइट हो सकती है, या वो आपकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करके रिवील कर सकती है. तो फिशिंग एंड फार्मिंग आर टू सिक्योरिटी इश्यूज. ये दोनों ही सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और इसका प्रिवेंट करने के लिए, या इसको मसले को हल करने के लिए आप यूज करते हैं फार्मिंग. स्टेट वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग. इसमें क्या सिमिलैरिटीज है कि बोथ आर डिजाइंड टू स्टील और कलेक्ट पर्सनल डेटा, बोथ प्रिटेंड टू बी द रियल कंपनी, बोथ यूज फेक वेबसाइट. दोनों ही फेक साइट से आ रहे होते हैं. और फिशिंग इन्वॉल्व यूज ऑफ एन email, where farming involves installing the malicious code through a website. Phishing involves clicking a link or an attachment, where farming creates a redirection. जब आप किसी लिंक को क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, फिशिंग हो जाती है. और फार्मिंग में ये है कि आपको वो एक साइट से दूसरे साइट पे रीडायरेक्ट कर रहा होता है, यानी लिंक यहीं से बन रहा होता है और खुद ही जा रहा होता है लेकर आप. So this paper has ended. I hope you have enjoyed this whole session. This video was pretty long. I went with a accelerated speed. I would say it was bit faster. So if you have any difficulty in understanding this thing and you felt that I went too fast, so you can always request me to go slower, and I'll do that when you come for the private tuitions and for the private classes. So you are always welcome to join my classes, and whenever you want, we can do that. We can start commencing the classes. That's not a problem, right? So take good care of yourself. So it was me, Aqeel Ahmed, and I did share with you this whole solution of the paper. So there you go. So my WhatsApp number is written there. So you're most welcome to send me messages there. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel and videos. So take good care of yourself. Goodbye.